अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ। بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، ابھی میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اسے انجبار بولتے، یہ انجبار بولتے۔ انشاءاللہ ابھی میں اس کے فائدے بتاؤں گا آپ کو۔ آج لوگ کینسر کی بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ یہ کینسر کی بیماری یہ ایک جسمانی نہیں، یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ جب تک آپ مرض کو نہیں پہچانیں گے اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ وہ مرض کو پہچاننا صرف ڈاکٹر اور حکیم کی ذمہ داری نہیں، یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ آج انسان سے زیادہ جانور بدنام ہو رہا، آج انسان سے زیادہ جانور بدنام ہو رہا۔ بولتے ہم گرگٹ کو کتنا جلدی رنگ بدلتا بول کے، لیکن گرگٹ سے بھی زیادہ جلدی جو ہے رنگ بدل رہا انسان، ہم کو نہیں معلوم۔ بیلاں کو بول رہی منڈ ہیں بول کو، لیکن بیلاں سے زیادہ منڈ ہم انسان ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا۔ اور سانپوں کو بول رہی ڈسرا بول کے، سانپ سے بھی زیادہ زہری علاج انسان ہے جو اپنے خود رشتہ داروں کو ڈس دے رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ سب سے پہلے آپ اپنے اللہ سے رشتہ رکھو، اس کے بعد جسم سے رشتہ رکھو۔ یہ جسم کا رشتہ انشاءاللہ خبر کو گئے تک ساتھیں گا۔ اگر جسم بھی آپ سے رشتہ توڑ دیں گا تو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا ہگنا سب مشکل ہو جاتا۔ جب آپ میرے پاس آتے، آپ بڑی آسانی سے نہیں بڑی مشکل سے آتے میرے پاس، کیونکہ آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے، اسی لیے آپ میرے تک آتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ موت کینسر کے پیشنٹس دیکھیے، اب میرے بھائی ہیں، ان کو بایوپسی کے بعد کیا حالت ہوئی اب دیکھو، پھر انشاءاللہ میں آپ کو پورا علاج بتا کے دوں گا۔ گھر پہ بیٹھ کے آپ شفایاب ہو سکتی، میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ میرے پاس آ کے ٹھہرنے کی نوبت نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ۔ آئیے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ کہاں سے ہیں آپ؟ یہ اٹھو ذرا، اٹھو، اٹھ کے ہیرو۔ کہاں سے ہیں آپ؟ گھٹ 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 پکڑو، ادھر پھرو۔ کیا بولے ڈاکٹر آپ؟ نہیں ہوتا کر کو بولے، بایوپسی کرا کے چھوڑ دیے کیا؟ ہاں، گھر کو لے کر چلے جاؤ بولے۔ اب یہ پورا اتنا پھک گیا۔ نام کیا تمہارا؟ پاشا، پاشا ظہیر الدین۔ ٹھیک ہے، لو یہ کاٹو، ہے تاگے نہیں پہننا، یہ تاگوں میں شفا نہیں ہوتا۔ اگر تاگوں میں شفا ہوتا تو اللہ یہ چیزیں نہیں بناتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پیروں میں بھی ہیں کیا؟ ابھی میں علاج بول کے دیتا ہوں، انشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے کر لے تو شفایاب ہوتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بیٹھو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی مہربانی اور آپ کی دعا۔ الحمدللہ۔ کیا کریں آپ جب آپ میرا ویڈیو دیکھے تو؟ الحمدللہ طبیعت مطمئن ہوئی آپ کی ویڈیو سے۔ کیا کرے آپ؟ کون سا نسخہ کرے؟ کون سا بھی نسخہ نہیں، پہلا نسخہ آپ کا کیا میں نے، کیا کیے؟ جو شیشم کا پتا۔ شیشم کا پتا اور وہ جوس دیے وہ آپ، ہاں اس سے مہربانی ہوئی، اللہ کا شفا ہاں، تھوڑی تھوڑی آغازی میں آ رہی ہے۔ الحمدللہ۔ یہ شیشم کے پتے کا کاڑھا بنا کے پیے آپ؟ ہر روز پی رہا ہے، 3 وقت صبح سے شام تک یہی استعمال کر رہے تو ماشاء اللہ بھوک جو آپ کو جو ہے ایک غذا سمجھ کے آپ پی رہے، غذا سمجھ کے پی رہا اور بھوک نہیں لگ رہی۔ تو ماشاء اللہ اس سے آپ کو جو ہے جسم میں ایک غذا کی جیسی جو ہے قوت مل رہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہر الفاظ میں بھی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے دماغ میں ڈالنا۔ اب آپ نہیں پہنے کچھ بھی تاگے وغیرہ، الحمدللہ۔ اب یہ مرض کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، ایک شیشم کا پتا اور ایک انجبار۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ شفایاب ہویں گے۔ السلام علیکم۔ کہاں سے ہیں آپ؟ بیلگام سے۔ کیا تکلیف آپ کو؟ اور یہ تاگے نکالو، جلدی شفا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ میں بھی ہے، سن لو اب میں کیا بول رہا ہوں۔ ابھی جو نسخہ بولتا ہوں آپ بھی سن لو، آپ بھی سن لو۔ کینسر کی بیماری یوزولی 2 وجوہات، ایک بد نظری یا برا اعمال،
जो लोग करते। दूसरा, आपके मैदे की गर्मी, आपके अंदर मैदे की गर्मी, ये एक सोचने की बात है, सोचने की बात है। देखो, जब आपकी ग़िज़ा सही नहीं रहती, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, तब आपके अंदर, आपके मैदे के अंदर एक गर्मी पैदा होती, जिसकी वजह से आपके जिस्म के कोई भी ऑर्गन में एक छाला आ सकता। जब आप वो छाले में ही आप सुधरे नहीं, सही पटरी पे नहीं है, सही रास्ते पे नहीं है, तो वो छाला एक कैंसर का रूप ले लेता, जिसकी वजह से आपको बायोप्सी, कीमो, ऑपरेशन, ऐसी चीजें जो है करना पड़ता। उसके बाद भी आप कामयाब नहीं होते, जो मेरे भाई नाकाम होके मेरे पास है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इंशाअल्लाह ये अंजुबार आपकी मैदे की गर्मी दूर करता। 3 नुस्खे नोट डाउन कर लो, घर पे बैठ के कर लो, इंशाअल्लाह शिफायाब हो जाएगी। 3 नुस्खे इंशाअल्लाह। पहला नुस्खा अंजुबार। अंजुबार, ये क्या करो आप, एक 2 या 3 इंच अंजुबार रात को 1 गिलास पानी में भिगने डालना। ये आपको दवासास में जाजी के पास, पंसारी के पास आसानी से मिल जाता। अंजुबार बोले तो आपको देते। रात को पानी में भिगने डालना, फिर सुबह उठ के वो पानी को थोड़ा पका लेना। पका लेने के बाद अंजुबार जो पानी में भिगने डालते वो फेंक देना, और जो पानी पका वो पानी ठंडा होने के बाद पी लेना। समझ में आ रहा? नुस्खा नंबर 1। नुस्खा नंबर 2, शीशम का पत्ता लेकर आओ। नुस्खा नंबर 2, एक कच्चा खोपरे का रस निकाल लो, 1 गिलास, छोटा या बड़ा, नॉर्मल, ठीक है, या नॉर्मल। 1 गिलास खोपरे का रस, उसमें 1 चमचा दही और 1 चमचा शहद इंशाल्लाह डाल के ये नहार पेट पीना। एक आधे घंटे का गैप रख के ये ले सकते आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्या है, अंजुबार। दूसरा खोपरा, दही और शहद, ठीक है, ये आधा 1 घंटे का गैप रख लो। और तीसरा शीशम का पत्ता। शीशम का पत्ता मैं बाकी के वीडियोस में भी आपको बता के हूँ, अभी भी बताता हूँ इंशाल्लाह। शीशम का पत्ता 21 शीशम के पत्ते सुबह नहार पेट 2 गिलास पानी में डाल के अच्छा पका लेके 1 गिलास करो। फिर ये सुबह आधा गिलास, शाम में आधा गिलास इंशाल्लाह। खाना खाने से आधा घंटा पहले। रात का खाना जल्दी खा लेना, 6 बजे से पहले खा लेना। समझ में आ रहा आपको? और ये शीशम का पत्ता, ये इंशाअल्लाह आपके अंदर के छाले और जख्मों को सुखा देता। सुबह को और शाम को आधा गिलास इंशाअल्लाह आप ये लेना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। इससे ही आपको फायदा होगा। अच्छी नींद करो और नमाज की पाबंदी करो। नमाज फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये बीमारी की हालत में इनके लिए भी माफी नहीं है, नमाज की माफी नहीं है। आपके लिए भी नमाज माफ नहीं है, किसी हालत में भी नमाज माफ नहीं है। फर्ज है नमाज, किसी हालत में भी माफ नहीं। सफर की हालत में हो, जंग की हालत में हो, मौत के करीब हैं तो भी फर्ज है नमाज। मैं आपको नमाज पढ़ेंगे क्या कर को पूछा तो दूसरा मैटर चेंज करते। मेरे पास 10-10, 15-15 महीने से आते, नमाज कहते ही दर्द ज्यादा हो रहा, तकलीफ ज्यादा हो रही, नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जा रहा। खाली खाना पानी और नींद का ख्याल, नमाज का ख्याल क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह मेरे से राजी हो रहा क्या? अल्लाह मेरे से राजी हो रहा क्या? ये पूछ रही नहीं, खाली अपना दर्द सुना रही, अपनी तकलीफ सुना रही। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमा दी है, सुम्मुम बुकमुम उम्मीयुन फहुम ला यरजून। मैंने उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, मैंने उनकी जबान को ताला डाल दिया, मैंने उनके कानों पे पर्दा डाल दिया, उनके दिलों पे मोहर लगा दी। हिदायत पे नहीं आएंगे वो लोग, आप कितना भी बोलो। ये कंडीशन में भी माफी नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये पत्तों में, ये जड़ी बूटियों में अल्लाह शिफा देंगे आपको। नहीं तो दुनिया के हकीमा बदनाम है, और मुझे भी बदनाम करने के लिए कसर नहीं छोड़ी दुनिया। दुनिया बोल रहा हूं मैं, इतने सारे चीजें बता के देने के बाद भी इन्हें कार में फिर रहा 1 करोड़ की, इन्हें 10 करोड़ के बंगले में है। मैं अल्लाह से मांग रहा हूं भाई, तुम्हारे से भीख मांग रहा हूं। दुनिया के लोग, जितने लोग आपके ऊपर जी आपके हाथ पर शिफायत हो गए हैं, इसका कोई मायना नहीं रखा। हाँ, जो आपका कार, आपकी सल्तनत, आपकी चेम्बर, ये देख रहे लोग, हाँ। लेकिन बेवकूफ लोग हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले लोग बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दे रहा तो घर अल्लाह ताला रहने के लिए, अल्लाह ताला दे रहा।
मुझे कार में बिठा रहा तो 1 करोड़ की कार में अल्लाह बिठा रहा तुम्हारे। पेट पे जाएगा, इसको पेट पे जरूरत किसको? देखिए मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरी जिंदगी सफर में गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह से हमको देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह आपके दिल में जज्बा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी एक ही नियत है कि लोग घर पे बैठ के शिफायाब होना, शिर्क से बचकर, नमाज को पाबंदी से अदा कर कर। ये 2 ही चीजें हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। ये 2 चीजें इंशाअल्लाह आपको गुमराही से और ये बड़ी बीमारियों से बचा लेंगे इंशाअल्लाह। हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक क्या है? पहले शिर्क से बचना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के नबी हैं और हमारे आखिरी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये चीज आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आप कामयाबी पर हैं। माँ के गोद से लेके लाखों लोग दुनिया के अंदर है, जी इसके बावजूद क्यों शिफा आपके हाथ में रखे है? शिफा क्यों आपके हाथ में रखे है? शिफा हाथ में नहीं है, वो अल्लाह अल्लाह की देन है ये, अल्लाह की देन है ये किसी मैका लाल की देन नहीं है ये। बेशक ये दिया हुआ है, अल्लाह की अता ही है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो शिफा हाथ में नहीं, इन चीजों में रखा अल्लाह। जो लोग यकीन के साथ अमल करेंगे वो शिफा होंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, प्लीज मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है ना? ये आपके दिल का जज्बा है जो अल्लाह ताला आपके दिल से निकाल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब मैं लाइव में जो भी बातें कर रहा हूँ ये सच और हक बयान कर रहा हूँ। अगर आप इन चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, लापरवाही करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, ठीक है ना? इस्लाम में जो है, जो बाउंड्री है वो बाउंड्री में हमें रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें कामयाब रहेंगे। क्योंकि आप जब तकलीफ में होते तो मुझे पता है कि आपको बहुत मुश्किल है सही रास्ते पे आने के लिए। क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वादा किया, क्या किया? अल्लाह मैं तेरे बंदों को इस तरह गुमराह करूंगा बार बार, और उनको उसकी साजिश है जहन्नम तक लेकर जाने की। शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी टीम के साथ तैयार है उन्हें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पूरे टीम के साथ उन्हें पूरी मेहनत कर रहा कि अल्लाह का बंदा जहन्नम में जाना बोल के। समझ में आ रहा? क्योंकि अल्लाह ने उसको बंदे की वजह से जन्नत से निकाला। अब उसका एक मकसद है कि शैतान की वजह से इंसान जहन्नम में जाना, तो उसका ये मकसद से उन्हें ये हुकूक से दूर करता हमें। और अल्लाह भी कसम खाया, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक वो सच्चे दिल से माफी मांगते रहेंगे तब तक मैं उसको माफ करता जाऊंगा। समझ में आ रहा? उन्हें गुनाह करता जाएगा बोल के अल्लाह से माफ जो है ये करा, और अल्लाह भी क्या बोल रहा? मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब जब उन्हें माफी मांगेगा तब तब मैं उसको माफ करता रहूंगा। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिससे अल्लाह ताला जमीन से लेके आसमान तक भी लेकर आ तो मैं माफ करूंगा, लेकिन मैं शिर्क, बेवफाई को माफ नहीं करता। और ये शिर्क हम क्यों कर रहे हैं? हम कोई मजबूरी से नहीं कर रहे, हम ये इंटेंशनली कर रहे। ये तागे पहनना, ये तावीज़ा डाल लेना, ये नाराला, ये नींबुआ, ये कड़ा, अल्लाह के अलावा कोई और रास्ता है नहीं हमारे वास्ते। आखिरी रास्ता ही है अल्लाह का। समझ में आ रहा? और दूसरा, नमाज की पाबंदी। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो सारे गुनाह भी माफ हो जाएंगे और आप पाक हो जाएंगे एकदम इंशाअल्लाह। दूसरा नमाज। तीसरा हक जो है ज़कात, सदका, चोरी से बचो, धोखा, नाहक किसी का माल खा जाना, इससे भी जो है बीमारियां आते। अब नमाज में सब ओके हैं, सब अच्छे हैं, तो आप अगर आप सजदे में भी मर गए, काबे के सामने भी सजदा करते हुए आप मर गए, तब तक आपको जन्नत में नहीं डालेंगे अल्लाह, तब तक बंदे का हक अदा नहीं होता। समझ में आ रहा? किसी का नाहक बैठ कर ठंडे दिमाग से सोचो, किसी का दिल दुखा है क्या, किसी को गाली दिए क्या, उनसे माफी, क्योंकि बंदे की माफी बंदा से देना, अल्लाह माफ नहीं करता। यानी ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक इंशाअल्लाह हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, दो भी इसमें चाह गए ना, एक बंदे का हक। और ये तीन चीजों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो ये चीजें जो मैं आपको बताया नुस्खे, ये फायदा देंगे आपको इंशाअल्लाह। नहीं तो ये नहीं, आपको हजारों के चीजें में लाके भी रख दिया सामने, तब भी आप शिफा नहीं होते। आयुर्वेदा में गाय के पेशाब को बहुत ज्यादा मायने देते, बहुत ज्यादा मुतमईन, क्योंकि उसमें कैंसर को मारने की सलाहियत रखे अल्लाह। किसमें? गाय के पेशाब में। इतने चीजें आपके ऊपर अमल करते हुए पेशाब भी पीएंगे तो शिफा नहीं मिलेगा। क्यों? वो पेशाब पे तो नमाज भी नहीं होती है नहीं, तो इस वजह से वहां तक नहीं जाना, नौबत बोले तो इसमें ही शिफा होना। और इसमें शिफा आप तब होंगे जब आप
आपको ये जो मैं अमल बोल रहा हूँ, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये 2 अमल आप करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ रहेंगे, नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड, इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हूँ मैं। फिर 7 से 11 तारीख तक हैदराबाद में जो है जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री अदनान कॉलोनी, इंशाल्लाह वहां पे रहूंगा हैदराबाद में इंशाल्लाह 7 से 11 तारीख तक। उसके बाद 14, 15, 16 इंशाल्लाह बैंगलोर, कंबीपुर, अंचे पाड़लिया, फैजुल लेआउट, इंशाल्लाह यहाँ पे मिलूंगा। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। इंशाल्लाह इन नंबर्स पे फोन करो। बहुत सारे फेक हकीमा और जो है डॉक्टर मेरा नंबर डाल के आपको दवाएं भेज रही और जो है मेरे वीडियोस के ऊपर अपने नंबर्स डाल रहे। मैं इसीलिए मौजूद हो रहा हूँ हर जगह कि मैं खुद आपको एक नजर देख सकूं। मुझे आपको देखना, देखिए कुछ ये मकसद नहीं है, एक ही मकसद है कि इंशाल्लाह आप शिर्क से पाक हो जाए और नमाज की तरफ आ जाए इंशाल्लाह। क्योंकि ये 2 ही चीजें हमारे अंदर देखते, क्योंकि आपको जब बीमारी आती है तो सही रास्ते पे आना बहुत मुश्किल रहता, चंद दिन रहते आपके जीने के। क्योंकि आपकी कैंसर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उनकी हयात कितने दिन रहती, एक तकाजा है इतने दिन रहती, उतनी हयात में अल्लाह कामयाब होना सबसे बड़ी कामयाबी वही है। सबसे बड़ी कामयाबी दौलत कमा लेना, शोहरत कमा लेना, दुनिया में फेमस हो जाना, करोड़ों की अरबों की दौलत रख लेके लोगों में बांटना, ये कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी खबर में जब हम आंखें बंद करते उस वक्त जो हमारे साथ होने वाला है वो है असल कामयाबी। असल कामयाबी वहां पे जब जन्नत है या दोज़ख है, आपको जो बताएंगे, जब आपको सवाल हुएगा मन रब्बु का, कौन है तेरा अल्लाह, मन दिनियों का, तेरा नबी में तेरा दीन कौन सा है, मन नबियों का, तेरा नबी कौन है। जब यहाँ पे हम अमल करेंगे, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे, तब हम बोलेंगे मन रब्बु का, बोले तो मेरा अल्लाह है नी। जब आप यहाँ नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, माँ के गोद से खबर के गोद तक उन्होंने हर एक तरीका बता के दिए, वो आप अमल करेंगे तो आपको पूछेंगे मन नबियों का, नबी तेरा कौन है, बताएंगे आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नी। और मन दीनु का, तेरा दीन कौन सा है, इस्लाम। अब तब बोलेंगे जब आप इस्लाम में बताए हुए तरीकों के ऊपर आप चलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह की रस्ती को मजबूत थामेंगे, तब आप ये सवालों का जवाब देंगे, तब आप कामयाब होंगे। दुनिया की कामयाबी नहीं है, आखिरत की कामयाबी, खबर की गोद की कामयाबी, असल कामयाबी वो है जिस पे हमको चलना है। चलना बहुत मुश्किल है, आग पे चल लेंगे, लेकिन कामयाबी के रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शैतानों की बहुत बड़ी टीम हमारे पीछे है जो हमें जहन्नम तक लेकर जाने की दिन और रात कोशिश कर रही, समझ रही। तो यही मकसद से मैं आपको सारा इल्म फेसबुक यूट्यूब के जरिए बोल के देता हूँ, ताकि इंसान घर पे बैठ के शिफायाब होके अच्छे हो जाना बोल के। और आप मेरे पास आते हैं तो शायद अल्लाह ताला आपके जेब से खजाना निकाल को मुझे देने के वास्ते शायद भेजते होंगे, जो अभी मेरे पास निकाला। ये है असल खजाना, यानी ये है असल खजाना। तो शायद अल्लाह ताला मेरे कुछ बातों से आपकी जिंदगी को बदल दे सकता, क्योंकि ये सारे अल्फाज मैं याद करके नहीं बोलता हूँ, जो अल्लाह मेरे दिमाग में डालता वो जबान से बोलता हूँ। कोई प्रिपेयर होके आपको एक दो घंटे में बात नहीं करता, क्योंकि हमारी दिमाग की सलाहियत अल्लाह रखा सो है, हमने हिकमत अल्लाह अता करा। असल हकीम की हिकमत अपने अल्फाजों में होती। दवा सेकेंडरी, दवा को सेकेंड प्रेफरेंस पे रखो बोलता हूँ मैं डॉक्टरों को। मेरे पास जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको सबको एक ही बात बोलता हूँ, दवा को सेकेंडरी पे रखो, पहले रखो आप अपने अल्फाज। और मर्ज की गलती को पहचानना उनकी बीमारी को पहचानने के बराबर है। उनकी गलती को पहचानो, उनको हक, अल्लाह का हक और बंदों का हक के बारे में मालूमात कराओ, फिर देखो इंशाअल्लाह आपके पास 1000 किस्म की दवाएं होंगे, लेकिन एक दवा में ही अल्लाह शिफा रख देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कड़पा को आ रहा हूं मैं इंशाअल्लाह। ये वहाँ की बहुत एक बेहतरीन टीम माशाअल्लाह कौम की खिदमत के लिए माशाअल्लाह से वहाँ पे है, जिनके दिलों में मैं इखलास देखा, जिनके अंदर मुझे इखलास, ईमान और खिदमत करने का सच्चा जज्बा नजर आता, उन्हीं से मैं जो है इंशाअल्लाह उनके दिल के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ और उस गाँव में मैं तशरीफ लाता हूँ इंशाअल्लाह। तो पूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट का A to Z जो है जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद देख के जो है फॉलो अप कर रहा हूँ। सो है तो कड़पा में मैं इंशाल्लाह 18 तारीख को आ रहा हूँ, जनवरी 18 तारीख को। एड्रेस है अजमत फंक्शन हॉल इंशाल्लाह, विनायका नगरा, कड़पा, आंध्र प्रदेश। 18 तारीख को इंशाल्लाह कड़पा में मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं वहां पे 2 सेक्शंस रखता हूँ, सुबह में एक
اور دوپہر میں یہ سیکشنز میں بیٹھ کے میں کیا بولتا ہوں غور سے سننا ضروری ہے. آپ دوا لیو نہ کو لیو وہ آپ کی مرضی. میں کسی کو دوا کے لیے ظلم نہیں کرتا ہوں, دوا لینا بول کے نہیں بولتا ہوں, کیونکہ اللہ پتوں میں شفا رکھا, اس میں شفا ہو جاؤ. علاج آسان ہے, علاج آسان ہے, اور سچ جو ہے سستا ہے اور سچا ہے. یقین کرنا بہت ضروری ہے. سچا, سستا اور آسان. لیکن کروڑوں کے پیسے خرچ کرے تو بھی شفا نہیں ہوتے. یہ کنڈیشن پہ آتے میرے پاس. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو انشاءاللہ کڑپا میں ملیں گے 18 تاریخ کو. 2 سیکشنز رکھتا ہوں, صبح میں ایک دوپہر میں ایک, بیٹھ کے سننا, سن کو عمل کرنا اور شفا ہونا. شفا نہیں ہوئے تو آپ خود ذمہ دار ہوتے. یہ لوگ شفا ہو کے آ رہی ہیں بیکاز عمل کر رہی. ٹھیک ہے نا؟ اپنے خیال رکھیے. انشاءاللہ میرے فون نمبرز پہ رابطہ کریے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کچھ بتا رہے تھے, تھوڑا بچڑو. ہاں بولیے. آپ کی خدمت اللہ کی طرف سے, جی الحمدللہ, اللہ نے آپ کو بہت سارے نعمتیں عطا کی ہیں. الحمدللہ. اس کے واسطے دنیا جلنا ضروری ہے آپ کے پیچھے. جی الحمدللہ. ویسے آپ جیسے اللہ والے بندوں کا مجھے جو ہے محبت ہے اور دعا ہے. الحمدللہ پوری دنیا مل کے بھی مجھے کچھ نہیں کر سکتی. الحمدللہ بس آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے انشاءاللہ کہ جو میں بول رہا ہوں اللہ اس پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور آپ سب کو بھی شفا عطا کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.